ladies and gentlemen, the meaning of prana, what is the meaning of, you know, prana is something that you have to understand. What is prana, right? A lot of people have very simple definitions of prana, right? But again, I have always been giving you technical knowledge, right? Prana is three things together. They are when they are synchronized together, it is prana. So prana is its synchronization, combination, interdependence of material world. Okay. So when I say material world, right, and your, you know, your soul and your mind. Now, mind, soul, and material world, right, is equal to prana. Okay, and prana is a energy which is flowing in our body, right? What happens when you die? You say, people say इसके प्राण निकल गए. The prana is gone. So, what happens when the prana is gone? According to Shastras, the meaning of death is now you are disconnected with the material world. First thing, yes or no? Yes. Right? You're gone. I mean, you cannot enjoy materialism. Your car is left, your so called Audi or a Mercedes is no more yours. Your so called home, that bungalow is no more yours, right? Oh, you had this jewelry and diamond rings, you had, this much of money in your bank account. It is now dormant. It is either the nominee will take the money or it is with the government. Nobody will claim it. It will go in the bad debts, right? So the material aspect uh, of the prana is gone, right? So so that is another thing that is very very important. I've just muted so that there's no static. So material world, I hope you all can hear me, right? Yes. Okay, great, thanks. So uh, so the first disconnect that happens to someone is the material world. You are detached. You cannot enjoy the so-called wealth that you have built over the years, for which you worked so hard in your life. You you know ran so fast, right? You dedicated 12, 14 hours of your life for something called materialistic world, right? And the moment prana is gone, the first thing which is gone is this. So it is the prana which helps you to enjoy the material world, right? And then, the subconscious mind, the spark, the soul is gone, right? It's not there. And when this is gone, your mind doesn't work. The mind has to end first, right? So that the soul can be released, so that you stop enjoying the material world. So this is something called prana. But who is managing this prana in your body? What? It is being managed through Shani, Saturn, you know, because Saturn will decide your longevity, your Ayu. Saturn will decide you take a rebirth or you would, you know, you'll be liberated, because Saturn is holding your karma. Saturn is holding your karma. Whatever good and bad, G and B, that you've done, the record is with Saturn, and Saturn gives it temporarily to Chitragupt when you die, so that the same can be shown to Brahma, Vishnu, and Mahesh and Yama, so that they can see what you've done.
And once it is temporarily, the file is sent to them. There is a signature of lot all these people, that okay, he needs to take a rebirth in this family, and there's an algorithm which is designed. And then the final signature is of Saturn again, because Saturn again checks it कि कहीं बाकी सबसे गलती तो नहीं हो गया. That clerical work, guy in the lower level, Saturn is that guy. I mean, it is first point of contact with you, but this is like a sweeper, the chapadasi who keeps taking file. Is that guy who's a record keeper. He just take orders and he executes. He's taking order from your karma, the good and bad karma. So, your good and bad karma is forcing him to give you punishments or give you rewards. He himself is nothing. Right? So when you do Shani mantras or something, it is better to do mantras above Saturn, and today is Shani Vara as well. So Ma Durga, Ma Saraswati, Ma Kali, Ma Lakshmi, Vishnuji, Brahma, Shiva, all these forces are very, very high. So, so in the layman terms, what is Saturn? Saturn is air, and this Saturn is air is actually called in our sanskara is Vayu. And you can call this Vayu as a prana, because the first sign of somebody who's dying is that he or she is not breathing. There's no Vayu in the body, the Vayu is gone. So, you know, the problem with the medical system is when the Vayu is gone, the medical system declares someone dead, right? But they don't diagnose someone dead. Huh, that's the pity. Because to diagnose someone dead, they will have to go to understanding of these five pranas. You are always declared dead. You're not diagnosed dead. Diagnosing, even if you're not breathing, even if the soul has left your body, still you're not dead. You know that? It takes some time. And what is that time will be explained today in your life, so that you can change the entire course of your lifestyle. Prana Vayu, that's one sort of a Vayu. The second one that you have is the Samana Vayu. The third one is that you have is a Apana Vayu. The fourth one that you have is the Udana Vayu. These are all Sapatrishis. You know, they are working in your body. Their energies, in fact, their Ashirvad is in fact working. And then the last one is the Vyana Vayu. And I hope you can say this Vayu. Okay. So I'm not writing Vayu again. Now, what is Prana Vayu? Prana Vayu is your respiratory system. Okay. So I'm just writing resp. It is your respiratory system. Now you say, Navneet, is the respiratory system in the entire body? The answer is no. Okay. If we have doctors here, doctors would know what I'm talking about. That respiratory system is only restricted to the respiratory organs. Okay. It is not restricted. So there are chances that somebody has stopped breathing, but still the pulse is on. Yes or no? Yes, sir.
यू मस्ट हैव हर्ड दिस दैट अभी अच्छा इसकी सांस नहीं चल रही, ओ गॉड पल्स आ रही है इसकी, बचाओ 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 बचाओ, यू नो दैट someone, someone is gone, the respiratory system, the prana vayu is not working, but there are other pranas that are working. आपकी वायु नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद है, चोक हो गया है, इसीलिए वेंटिलेटर पे डालते हैं और इंसान वेंटिलेटर से रिकवर कर जाता है कभी कभी, बिकॉज उसके बाकी प्राण नहीं निकले होते हैं, सिर्फ प्राण वायु गई है उसकी। आप समझ रहे हो कितना डीप है ये? इट इज वेरी डीप, बिकॉज आउट ऑफ द अदर ऋषिज, आपके पास उप प्राण भी होते हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा आज, जो बाकी ऋषिज के पास है। उप प्राणा, सब प्राणास, द लॉर्ड्स एंड देन सब लॉर्ड्स, उप प्राणा। जो उप प्राणा है वो 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? नागा, नागा इज ए उप प्राण। कूर्मा, मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन होएगी, आपको याद नहीं रहेगा ऐसे। नाग, उपप्राणा में जो दूसरे आते हैं वो आते हैं कूर्मा, इनको एक्सप्लेन करूंगा आज मैं। देवदाथा, किरकाला, एंड धनंजय। ये आपके उपप्राण है, 5। 5 प्राण है, 5 उपप्राण है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर थॉट प्रोसेस। अब आप बोलोगे नवनीत सर थॉट प्रोसेस कहां से आ गया? जब डर लगता है, जब कोई घबराहट होती है, तो वो सबसे पहले आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आप हांफने लगते हो तेज तेज घबराहट में, जिसको पंजाबी में कहते हैं बंदा हौके ले रहा है। हौका इज असेह, एक लंबी सांस और घबराहट, और आपका ब्रीदिंग सिस्टम इफेक्ट होने लगता है। यस और नो? Yes. दैट इज दी that is why the prana is directly related to thought process। अगर आपका thought process अच्छा है तो आपकी आयु लंबी होगी। इसीलिए जो ऋषि थे, 60,000 पुत्र, 10,000 साल आयु, अगर आपकी 10,000 साल आयु हो जाए या 20,000 साल आपकी आयु हो जाए, तो हो सकता है हमारे भी 10-15,000 बच्चे हो जाए। इट इज बिकॉज दे आर लिविंग 60,000 70,000 years। You are saying, you are imagining that how can this person have 60,000 you know kids in maybe 70 years? You don't understand that he's not living 70 years, he's living for 70,000 years, because these rishis has controlled prana vayu through pranayam. huh, Pranayam, that's it. What is the complete meaning of pranayam? Prana is the respiratory system. Yama is the Yamaraj. Is the Yamaraj. You're telling Yamaraj that my respiratory system is not going to stop because I am doing pranayama, keeping the Yama away. Pranayam. Pranayama. So if you do pranayam and if you have total control over prana, samana, apana, udana and vyana, you are going to have a long life. You can manifest more things. Otherwise, you'll have to go early, take a rebirth. There's a gap of
30 years and then start again all over again from where you left. Just sipping a glass of water. Prana, Yama, keeping Yamaraj away. That is the importance of pranayama. Your respiratory system should be energized every day in the morning with 10 to 15 minutes of pranayama. Very important. And the thought process has to be positive. I remember once I speak to a doctor, a cardiologist, a fantastic doctor. He said, Navneet, if I get 100 patients in a week, 95 patients are who are getting cardiac arrest or a cardiac attack are people who are hypertensive, people who are in stress. आपने किसी लेबर क्लास को हार्ट अटैक आते सुना? ये बंदा, वो उसको हार्ट अटैक आएगा तो नशे की वजह से आ सकता है, दैट्स इट, कि उसने कोई नशा ज्यादा कर लिया। उसको टेंशन की वजह से कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप सारा दिन सूप पियो, अपने मैक्रोस बड़े अच्छे रखो, वे प्रोटीन पियो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो और अपनी कैलोरी काउंट्स लिखते रहो और आपकी डेली इनटेक को मैनेज करके रखो और स्ट्रेस्ड रहो, टेंशन में रहो अपनी बिजनेस की, बहुत ज़्यादा टेंशन लो, अपने फैमिली के अनवांटेड फियर्स आप लेके चलो अपने माइंड में, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, श्योर है, कोई नहीं बचा सकता। आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका सेल्फ कंट्रोल कुछ नहीं बचा सकता, सब खत्म। आप सुबह उठो, चाय के साथ बिस्किट्स लो ग्लूकोज के, फिर नहा धो के वॉक पे चले जाओ, आके नहाओ धो, आके 2 परांठे खाओ आलू के, हाई कैलोरी एंड हाई फैट, साथ में मक्खन खाओ, दही खाओ, थोड़ा सा हरी मिर्च खाओ, अचार खाओ, फिर चाय पियो, फिर 11-12 बजे फ्रूट खाओ, दोपहर को दबा के रोटी खाओ, शाम को कोई स्नैक खाओ, पकौड़े तल लो, ब्रेड पकौड़ा बना लो और रात को दबा के रोटी खाओ, 2 4 5 फुलके, फिर आइसक्रीम खाओ और फिर सो जाओ। और अगर रात को आधी रात को भूख लगे तो उठ के गुलाब जामुन खा लो या मैगी बना के खा लो और खुश रहो, आप 100 साल तक जी जाओगे। दैट्स व्हाट डॉक्टर सेड। It is the thought process. Thought process will make you live longer. Thought process will make you live shorter. According to him, because he is a doctor. वैसे तो आयु आपकी सैटर्न डिसाइड करते हैं, लेकिन प्राणवायु से आप सैटर्न को बदल सकते हैं। आप लोग कहते हैं ना क्या उपाय क्या है, मैं उसको बोलता हूँ फ्री में बताता हूँ प्राणायाम, तो उसको समझ नहीं आता। जब उससे 11,000 रुपया लेकर उसको बताता हूँ प्राणायाम करो तो उसको समझ में आता है। They are not understanding my single. I am saying Kunjitha Padam Sharanam. ये करो, ये करो, ये करो, समझ में नहीं आ रहा। Yesterday I gave it to someone. He said, सर कोई बड़ा उपाय बताइए। I was laughing within myself कि विष्णु जी से बड़ा कौन होगा। The only thing is I have not charged him anything. I thought somebody suffering from COVID, तो उसको मैं फ्री में रेमेडी दे देता हूँ। And I've given him 2 remedies and he said नहीं नहीं सर कुछ और रेमेडी बताओ, ये तो चलो पूजा पाठ हो गया, वो तो एक साइड पे है। And I stopped replying that person. That is where the problem is, the thought process. You can give same remedies by charging millions of rupees, and if you try to give them for free, it is not done. That is why I always keep requesting, each one of you कि अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप कभी किसी को फ्री कंसल्टेशन नहीं दोगे। एक तो आप अपना कर्मा बिल्ड करोगे अपने ऊपर, जबरदस्त गंदा वाला कर्मा, कि आप नेचर के बीच में आ रहे हैं। somebody has to die, राजा राम and Dashrath and your Vashishta, they knew that Raja Ram will go to Vanvas.
They knew that Sita Maiya and Raja Ram will never enjoy their marital life. Never. They knew everything. बट वो विधि के विधान में आना नहीं चाहते, वो बीच में आना नहीं चाहते. कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि मुझे कुछ चीजें सीधी सीधी नजर आ रही होती हैं, लेकिन मैं कौन होता हूँ विधि के विधान में आने वाला और आपको कॉन्शियस करने वाला और जीते जी मारने वाला? हु एम आई? अगर वो चीज ऋषियों ने मुनियों ने भी नहीं उसको एक्सेप्ट किया, इवन कि ऋषि मुनि भी बीच में नहीं आए होनी के, ऋषि विशिष्ट कुलगुरु थे राजा राम के, वो भी उसमें उन्होंने भी इंटरफियर नहीं किया, तो मैं और आप कौन होते हैं? आप फीस लेकर आप कंसल्टेशन दें और उनको उसकी वैल्यू होगी और उनको भगवान के साथ जोड़ें, ये आपका काम है. और अगर कुछ अच्छा है तो उसको बोलें कि खुल के जिंदगी जिए, और अगर कुछ बुरा है तो उसको बोले कि थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर ले. ये ज्योतिष है. और हाथ पकड़ के उसका जोर से उसका टाइम निकलवा दें. दैट्स इट. डॉक्टर क्या करता है? वो आपकी जान बचाता है? नहीं, वो आपका बुरा टाइम को पास करवा देता है, दवाई देकर, एनेस्थीसिया देकर, ऑपरेट करके आपके बुरे टाइम को निकलवा देता है. ये करता है डॉक्टर, उसका वो पैसा लेता है. यही एक एस्ट्रोलॉजर है. लेकिन अगर हम उसको मिसयूज करते हैं तो वो हमारा पाप है, वो हमारे पाप में आ जाता है. मिसयूज कभी मत करना जीवन में. तो थॉट प्रोसेस इंसान को जिंदा रखती है. थॉट प्रोसेस इंसान को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, उसके प्राण को सही रखती है. और प्राणायाम करने से आपका थॉट प्रोसेस अच्छा रहता है. इसका ऑपोजिट भी है, वाइस वर्सा. Why I say do pranayam yoga? Because it will keep your thought process positive and rich. So once the respiratory system is gone, there is another respiratory system called samana, which keeps your body heated, heat in the body. You know, heat. Do you think blood keeps your body heat? You are mistaken. It's your breath. Your breath is warm actually. You know, if somebody has ever slept on your shoulder, you can feel the breath, and the breath, no matter even if you're in -40 degree, the breath would be warm. That warmness element in the breath is actually the samana vayu, or you can call them as a samana prana vayu. I repeat, samana prana vayu. You know, when somebody dies, the next symbol that comes after respiratory system is that you lose the heat of the body. शरीर ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है. But do you think वो immediately ठंडा हो जाता है? The answer is no. It takes time. When my father expired in 2015, I remember, after his death, at least for 20-30 minutes, he was warm. And I was thinking that he's not gone. I was shouting, yelling, and crying, and telling doctor that ये तो गर्म है अभी भी, ये तो गर्म है. He's there, he's there, he's there. You know, the samana vayu takes some time to go out of the body. It is actually the heat. कुछ का समाना वायु बहुत जल्दी निकल जाता है, एकदम से शरीर ठंडा हो जाता है. कुछ का वक्त लेता है. It completely depends on the temperature of your body. And when the samana vayu is bad, you have a fever. बुखार में सांस तेज चलती है ना, देखना कभी, अपनी पल्स चेक करना बुखार में. जब हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा तो हमें ये सब कुछ चीजें हमें बहुत डिटेल में सिखाई गई. मैं आपको सिखा रहा हूं.
और उसी निष्ठा और उसी भाव से सिखा रहा हूं, जिस भाव से मैंने सीखी उससे ज्यादा ही दे रहा हूं। बॉडी हीट वो वायु की वजह से होती, वो समाना प्राण है आपके अंदर। प्राणा respiratory system, samana the body heat. The heat is actually not blood, it's not your body temperature, it's the vayu which is called samana vayu in the body that maintains your temperature. This is called samana prana vayu. The apana is a vayu that is from your navel hole to your feet. नवल से लेके आपके फीट तक एक वायु होती है। आप कहते हो कि यू नो दैट यू आर फार्टिंग, द एयर इज गोइंग डाउन, इट इज निकल रही है बाहर, राइट? आपका डाइजेशन सिस्टम भी इसके बीच में, बिकॉज नवल होल के आसपास ही सारा सिस्टम है। आपकी बॉल मूवमेंट्स, एवरीथिंग इज बेसिकली ट्रिगर्ड बाय एयर। अगर अपाना खराब हो तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज ये ऐसी एयर है जो प्राण के साथ मैच नहीं कर सकती। ये एयर इम्प्योर है थोड़ी सी। आप नॉनवेज भी खा रहे हो, ड्रिंक भी ले रहे हो, तो वो एक शुद्ध एयर नहीं हो सकती अपाना। और जो बैड एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी बॉडी में, वो बॉडी ऐसी है क्योंकि उसमें प्राण भी है, समाना भी है, वो उसको अपने पास रखना ही नहीं चाहती, वो निकल रही है फटाफट। इसीलिए जब आप कुछ गलत खा लेते हो, आपके गैस बनती है, तो वो निकलनी शुरू हो जाती है फ्रॉम you know from your eighth house. Eighth house is the rectum area. Eighth house एक कुंडली का गटर है, गटर, जिसको खोलते ही स्मेल आएगी। So that vayu which is, see what is happening with prana, it is in and out. वो आप इनहेल कर रहे हो और फिर वो कार्बन बाहर आ रहा है आपसे ऊपर से, वो नीचे से ऊपर आ रहा है प्राणा। और अपाना ऊपर से नीचे जा रहा है। दैट इज अपाना। Apana is also your sensory thing, your sensor। आपका जो बॉडी का सेंसर डिपार्टमेंट है, सेंसरी डिपार्टमेंट, दैट इज अपाना। आपको देखा ना, आपके पाँव कभी नम हो जाते हैं, कह रहे पैर सो गया मेरा, मेरी लात सो गई है, मेरे पाँव सो गए हैं। दैट सेंसरी थिंग इज एक्चुअली, देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ब्लड। The flow and that area is actually numb. You don't feel sense. And when you die, when you die, the soul feel numb. उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हुआ, उसकी शरीर ठंडा हो रहा है, और फिर वो नम फील करता है। पैर सुन्न हो गए, हिल ही नहीं रहे। आप सोचो सोल पे क्या बीत रही होगी उस समय, कि अभी मैं ठीक था, अभी मैं सबसे बातें कर रहा हूं, मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से छूट गया हूं, मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, नाउ आई एम नम, आई कांट मूव, आई कांट मूव। मेरे पैर सो गए, मेरे हाथ सो गए, मैं उठा नहीं पा रहा उन्हें, बिकॉज द अपाना इज गॉन। Apana is gone from your body. That is why you see 90% of the time when somebody is about to die, अगर उसने यूरन नहीं किया हो या बॉल मूवमेंट उसका क्लियर नहीं है, तो या तो यूरन निकलेगा या फाट निकलेगा, या आपका प्राण जो है ऊपर से और नीचे दोनों से निकलता है। सो जो ऊपर से प्राण जा रहे हैं वो मुंह से जा रहे हैं, और जो नीचे से जा रहे हैं वो अपाना है। The apana vayu is going, which is making your body numb. Now, once the apana is gone, the next step
which is gone is the udana. Udana is the buoyancy of the body. You know, you are bouncing because of udana vayu. It keeps you light. You pick up a person who is not dead, his weight, and the pick up you person who is dead, his weight would be much higher, because that person has lost the buoyancy. The buoyancy of the body is gone. It's over. आप किसी भी डेड पर्सन को उठा के देखो, वो पत्थर की तरह होगा, उसको उठाना बहुत मुश्किल होगा. It's extremely difficult to hold a person who is dead. क्योंकि उसके अंदर बॉयंसी नहीं है ना. जब आपको दुख होता है, आप स्ट्रेस में होते हो, आप हैवी फील कर रहे हो, आप कह रहे हैं यार मैं बहुत हैवी फील कर रहा हूं आज, मैं बहुत हैवी फील कर रही हूं आज. योर उडाना इज नॉट राइट. और जब खुश होते हो, जिम से आते हो, और यू मेक अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद योर लव्ड वन, आपकी बॉयंसी बहुत हाई हो जाती है. यू स्टार्ट फ्लाइंग, you feel light. Nothing, just the udana is satisfied. When you are happy, your udana is good. When you are sad, your udana is not good and you feel so heavy कि आपको अपने घर से बाहर जाना भी एक बहुत बड़ी चीज, नहाना बहुत बड़ी चीज लगती है. जब आप खुश होते हो तो आप सारा दिन नहा सकते हो, आप सारा दिन जंप कर सकते हो. खुशी में आप जंप करते हो. You run like a wind. That is udana prana vayu. That's very important to live life. अगर आपके अंदर buoyancy अच्छी नहीं है, तो आपकी उडाना प्राणा वायु खत्म. And when you lose udana prana vayu, it is sign of death. एकदम से buoyancy खत्म. हाथ उठाओगे ठक करके नीचे गिरेगा. So heavy like a, जैसे इसमें कोई जान ही नहीं है. वो जो जान नहीं है ना, वो उडाना प्राणा है. आप नम हो गए, हीट खत्म हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया, बॉयंसी खत्म हो गई बॉडी की. एंड नाउ देयर इज एयर इन दी वेन्स, वस्कुलैरिटी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रॉटन होने लगेगी. वो जो रॉटननेस आती है बॉडी में, व्हेन यू गेटिंग रॉटन बॉडी, the body takes 14 days to get rotten completely. 14 दिन लगते हैं टोटल रॉटन होने में. इसीलिए जो लास्ट रिचुअल किए जाते हैं आफ्टर संस्कार या दफनाने के बाद, वो 13 दिन के लिए बात किए जाते हैं. 13वां कर देते हैं. 13 days. Because they think that the vyana vayu is gone. आपको पता है यहां तक व्याना वायु तक स्कोप होता है, व्याना प्राणा वायु तक स्कोप होता है वापस जिंदा होने का. और इस व्याना प्राणा वायु को ही ममीज को प्रिजर्व कर देते हैं. जब उनको पता होता है कि व्याना प्राणा वायु अभी गई नहीं है, तो बॉडी रॉटन नहीं होगी, हम इसको हजारों साल तक संभाल के रख सकते हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ममी. Because they know the prana vayu is gone, the samana vayu is gone, the apana vayu is gone, the udana vayu is gone, but vyana is still there. The body is not getting rotten. आपने सेंसरी, अगर अपाना की हम बात करें, तो सुशांत when he died, तो लोग कह रहे थे अरे इसकी फिंगर हिल रही है, there's a sensation in the finger, abhi finger hili. Actually he was gone, it was the apana vayu. The body was numb, it is gone,
बट बॉडी, द सोल इज नॉट रेडी टू बिलीव दैट ही और शी इज डेड। तो वो कोशिश करता है। तो हल्का सा आप देख लीजिए, कभी डेड पर्सन का हल्का सा मूवमेंट हो सकता है बॉडी में, अगर आप बहुत केयरफुली देखें, स्लाइट मूवमेंट, इट डजंट मीन ही इज नॉट डेड, ही इज डेड। इट इज द अपाना थिंग which is going slowly. It takes some time. पहले प्राण जाएंगे, वायु जाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हीट जाएगी, फिर सेंसेस जाते जाते वक्त लगता है, नम होती जाती है बॉडी, आपको फील नहीं होता, जला दो, काट दो, कुछ भी करो, नो फीलिंग, टोटल नम। लेकिन हल्का सा कोशिश होता है, कभी उंगली हिल गई, कुछ हो गया, एंड देन दी बॉन्सी इज गॉन, यूर डेड, ड्रॉप डेड। बट देन व्याना goes in 14 days. The rotten process takes around 13-14 days to get the body completely rotten. When these 5 pranas, these rishis, they slowly go away from the body, now you realize that पुराने जमाने में सतयुग में किस तरह से उनको पता लग जाता था कि इसका क्या क्या गया है। व्याना गया, उड़ाना गया, पाना गया, समाना गया, उन ऋषि से बात करके उनसे पावर लेके उसको जीवित कर दिया जाता था। सिंपल। उनको प्राण वापस दे दो, समाना दे दो, अपाना दे दो, उड़ाना दे दो, व्याना दे दो, इंसान फिर से जिंदा। अब आप कहते हो मेडिकल साइंस, कहाँ है मेडिकल साइंस आपकी? तभी तो मेडिकल साइंस किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकी, क्योंकि उनके पास उनकी पहुंच ऋषियों मुनियों तक नहीं है। उनकी पहुंच ऋषि मुनि तक नहीं है, ना वो पहुंच सकते हैं, कभी भी नहीं, कलयुग में तो कभी भी नहीं, नेवर। नाउ देयर आर सब सिस्टम अटैच्ड टू दीज प्राणास, दे आर कॉल्ड upaprana. Naga is the first upaprana. The meaning of the naga is, in your terms, is burping. जब आपको burp आता है, that is called naga. Burping is actually removing, cleansing bad air from your prana and apana. Prana, carbon dioxide. Prana and apana. कोक पीते हो तो बर्प आता है ना, बियर पीते हो तो बर्प आता है। वो स्टमक में एकदम से गैस बनती है बहुत ज्यादा, और आपकी बॉडी उसको बाहर निकालती है, उसके साथ साथ कुछ और गैस भी निकल जाती है जिससे आप रिलैक्स फील करते हो। बिकॉज जब भी बॉडी में कोई गलत चीज जाएगी, चाहे वो कोक है, क्योंकि जहर को जहर काटता है, जहर को जहर काटता है, तो इसीलिए वो गैस वाली चीज, कोक में जो फिज होती है वो गैस है, वो गैस अंदर जाती है। बियर में फिज होती है, सोडा में फिज होती है, वो अंदर जाती है, एंड देन सडनली योर प्राणा एंड अपाना थ्रोज इट आउट थ्रू नागा। व्हाई दिस इज नागा? बिकॉज नागा यूज टू, सांप फूक मारता है बाहर की तरफ, दैट इज दी बर्प, एकदम प्रेशर से, जिसका आप कंट्रोल करना चाहोगे तो तबीयत बहुत खराब होगी, आप जहर फैल जाएगा शरीर में, यू विल डाई। और 99% वो कंट्रोल नहीं होता है। आप हाथ रख के उसको चाहे कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि सामने वाले के पास स्मेल ना जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट नागा इज अ उपप्राणा, वो भी एक साइन है, जब बर्ब्स आने बंद हो जाएंगे तो भी इंसान की मृत्यु होती है। कूर्मा इज ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज। आपको क्या लगता है कि आपकी जो ब्लिंकिंग हो रही है वो ब्लड की वजह से? इट्स बिकॉज ऑफ द प्राणा, इट इज बिकॉज ऑफ द एयर। दैट इज वाई जब कोई जाता है इस दुनिया में तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। द कूर्मा इज गॉन, द ब्लिंकिंग पावर इज गॉन, ही और शी इज नॉट एबल टू ब्लिंक, खत्म। आप उसकी आंखें बंद कर दो, बंद रहेंगी, खुली कर दो, खुली रहेंगी, द ब्लिंकिंग इज गॉन। दैट इज अनदर टाइप ऑफ,
आप एक बेहोश आदमी को, जिसके पास ये सारी वायु अभी एक्टिवेट नहीं है, और एक मरे हुए आदमी को सिर्फ आंखों से पहचान सकते हो। उसकी आंखें कुछ और ही तरह की हो जाएंगी, जैसे कि उसमें ब्लिंकिंग पावर ही नहीं है, खत्म हो चुका है। अगर एक बेहोश आदमी है, उसकी आंख खोलोगे ना, वो बंद कर लेगा आंख, चाहे वो बेहोश है, चाहे वो कोमा में है, क्योंकि वो उसका कूर्मा प्राणा वायु अभी जिंदा है। कूर्मा प्राणा वायु इज देयर। Devadatta is yawning. When you yawn, whenever you are in stress, whenever you have eaten rajasic food, heavy food, you start yawning because that prana gets disturbed. That prana doesn't want to live. वो कह रहा है यार, इसने इतना हैवी खा लिया, इतना गंद खा लिया है कि इसको सुला दो थोड़ी देर, ये और ना खा ले। आपको यौन आना शुरू हो जाता है, नींद आनी शुरू होती है, आप आपकी एयर बाहर जानी शुरू हो जाती है, आप बहुत सी एयर अंदर लेके जाना चाहते हो ताकि आप उसको हजम कर सको। दैट इज यॉनिंग। और जब आप सोते हो तो आपका लिवर, जैसे डॉक्टर पूजा ने बताया, डॉक्टर श्रुति ने बताया था कि आपका लिवर काम करना शुरू करता है जब आप सो जाते हो। द ओनली बॉडी पार्ट दैट वर्क्स और डिटॉक्स यू एट द हाईएस्ट लेवल इज योर लिवर, एंड दैट इज वाई आपको सुबह टॉयलेट जाना होता है, बिकॉज वो सारा निचोड़ के वो नीचे रख देता है कि इसको एक्सक्रीट करो। और उसकी निशानी क्या है कि मुझे बहुत ऑक्सीजन चाहिए, मुझे बहुत हवा चाहिए, यॉनिंग। आप लंबे लंबे हौके लेके टन्स एंड टन्स ऑफ एयर आप अपने में। और जो मरता हुआ इंसान है, कभी उसको देखना, वो छोटी छोटी यौन कर रहा होगा, मुंह खोल के पीछे की तरफ सिर करेगा इस तरह से। दैट इज एक्चुअली टेकिंग एयर इनसाइड, बिकॉज योर प्राणास आर आस्किंग मोर एयर, मोर एयर, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग। खत्म हो रहा है सब कुछ, एयर चाहिए, एयर चाहिए, एयर चाहिए। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, दैट्स यॉर्निंग। एंड देन जब बर्प से भी काम नहीं बनता, इतनी एयर अंदर हो जाती है और वो खराब होती है और बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर के कारण बहुत ज्यादा एयर आपके अंदर बन जाती है, तो फिर किरकाला काम में आता है, विच इज स्नीजिंग। एंड स्नीजिंग इज सो पावरफुल कि ये 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड के लिए आपके हार्ट को रोक देती है। Everything goes for a standstill because this kirkala prana vayu needs to go out. Otherwise, अगर आप अपनी स्नीज को रोकोगे, छींक मारते हुए आप अपने आप को रोकोगे, आपकी डेथ भी हो सकती है। यू शुड नेवर स्टॉप स्नीजिंग, एंड ऑल माय गुरुज हैव सेड कि अगर आपको स्नीज आई है तो आपको, अगर जोर से आई है तो जोर से मार दो आप स्नीज। आप उसको बड़े प्रोफेशनल और मॉडर्न वे से दबाने की कोशिश मत करो नाक पकड़ के, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी उससे। और जब बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है एलर्जी में, दैट मीन्स आपकी किरकाला नक्षत्रास, रिलेटेड टू योर उप प्राणास एंड रिलेटेड टू योर प्राणास आर गोइंग बैड। उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है ठंडा पानी पीकर, प्राणायाम करके, लंबी लंबी सांस लेकर। सो दैट इज स्नीजिंग। एंटी एलर्जीज यही करती हैं, वो आपके वायु सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करती हैं, और वायु सिस्टम के थ्रू ब्लड ठीक हो जाता है, और जो उबल रहा होता है वो थोड़ा धीरे पड़ जाता है। And this is not possible in Kali Yuga. Dhananjaya is opening and closing of your heart valves. Opening and closing of your heart valves. Valves. These were done by rishis and munis thousands of years ago, and because of which they used to live thousands of years. They never used to get cardiac arrest. They want to leave the body, they would request the pranas to go away and they will leave the body. Simple. They don't have to be sick, and they don't have to have any disorder in all these things to leave a body. They would simply request the prana vayu, samana vayu, apana vayu, udana vayu, and vyayana vayu to let's go, let's leave this body, let we have some work to do. Vishnu ji has called us, Brahma ji has called us, leave the body, we're done, I'm done. They can open and close the walls, जिसको कि आज की डेट में आप ओपन हार्ट सर्जरी या क्या क्या कहते हो, और फिर भी बंदा नहीं बचता। The opening and closing of your heart valves, is the Dhananjaya prana.
Now you understand the value of Sudarshan Kriya, Alom Vilom, Pranayam, Yoga, breathe in, breathe out, sitting, meditating. Actually, you are controlling your, you know, pranas. You're controlling your thought process, your body heat, your sensory, bodies, your buoyancy of the body, the quality of the skin, beautiful, shining skin, sundar, chamakta hua chehra. That's Vyana. Your burps, blinking, yawning, sneezing, your heart, everything is controlled by Vayu, prana. Any such disorder in these pranas or nakshatras can lead you to so many problems in life. Ladies and gentlemen, this is how I understand body. This is how I understand prana. I hope you've understood few things that I've trying to tell you. Yes, no, maybe. Very Yes, sir. interesting, Guruji. Very, Sir, very interesting. very interesting, and I can't resist saying one thing. So this topic was taught by one of the doctors. I will not name him because he was my Guruji. And he has done his MD from BHU, Banaras Hindu University. He was our professor. Same topic. I wish he could have taught like you. तो मेरा और इंटरेस्ट हो जाता है आयुर्वेदा में. सच बोल रही हूँ मैं, मुझे मतलब ऐसे लगता है मुझे कुछ नहीं आता है आज. And thank God we didn't do the video yesterday, because now I can work on more the same topic. Yes, we can. So I was full time I was thinking कि काश, मतलब पता नहीं सर क्यों नहीं पढ़ाते हैं लोग. I don't understand this. वो इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि उनको खुद में पूरा समझ नहीं आता है. क्योंकि एक किताब की नॉलेज और भगवान की कृपा होनी, ये दो अलग अलग चीजें हैं. Until and unless you are not spiritual, आपको ये चीजें समझ ही नहीं आएंगी. आप सिर्फ वही पढ़ाओगे जो किताब में लिखा है. सर ऐसे लगता है अभी सब पूरा एजुकेशन सिस्टम में ही मुझे लग रहा है कि हम सिर्फ रट्टा मारते हैं, एग्जाम दे के आ तभी जाते तो हैं. मैं That's it. एक गुरुकुल खोलना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है, जिसलिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ कि मैं वो एक जमीन ले सकूं और वहां पे आप सब लोग पढ़ाएंगे मेरे साथ. आप ट्रेनर्स होंगे, आप शिष्य होंगे. यू विल बी माई प्री ओपनिंग टीम. और वहां पे हजारों बच्चे पढ़ेंगे और हम उनको सतयुग की तरफ लेके जाएंगे. बहुत अच्छा आइडिया है सर. इट्स वेरी इनोवेटिव आइडिया. और वहां पे ऑब्जर्वेटरीज होंगी, मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज विद राहु एलिमेंट, टू शो, टू सी ऑल दी स्टार्स एंड ऑल दी कॉन्सोलेशन, सप्तऋषि, ऑल दी प्लैनेट्स. एवरी डे आप दर्शन करो, एवरी डे, और अपनी कॉन्सोलेशंस को मूव होते हुए देखो. दैट इज रियल ज्योतिष. हम मेडिटेट करके तो वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी और ज्ञान के साथ तो पहुंच सकते हैं ना. हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि हम इतने क्लोज, इतने ऊपर चले जाएं मेडिटेशन में. अभी बहुत कलयुग में बहुत लेयर्स आ जाती हैं धरती के ऊपर, जिनको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है. Thanks a lot, Guruji, for this session today. I'll not call you sir today. You are my Guruji. No, no, you all are my students. Anyone has a question? So that Yes. Yes, Aditi. Hello, sir. हाँ जी बेटा. So, सर एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग समाधि. तो जब लोग समाधि मतलब आई हैव हर्ड दैट पीपल डू समाधि, तो ये भी क्या ये वायु से ही कनेक्टेड है? दे लेट देयर वायुस एब्सोल्युटली. लीव फ्रॉम देयर समाधि का बॉडी. सबसे पहला क्या नियम है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठो. ठीक है, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठो ताकि आपके प्राण जो हैं वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो सके. जो तेज सांस चल रही है, जब तक वो स्लो होके बिल्कुल काम होके बहुत कम लेवल पे नहीं रह जाएगी, तब तक आप समाधि में बैठ ही नहीं सकते. समाधि इज एक्चुअली कंट्रोलिंग योर ब्रेथ. राइट? यस, ओके.